Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। It is by God's goodness that we finished a month and we've entered a new month. ये परमेश्वर की भलाई के कारण है कि हमने एक महीना को पूरा किया है और हम एक नए महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। This whole year we have named it the month of abundant life, the year of abundant life. और ये पूरे साल को हमने बहुताई के जीवन का साल बोल के बुलाया है। And so we are looking at scriptures every month that has abundance in it. और इसीलिए हम हर महीने ऐसे वचन को देखते हैं जिसमें बहुताई है। And so this month we are naming it the month of abundant harvest. और इसीलिए हमने इस महीने को बहुताई के कटनी का महीना बोल के बुलाया है। That God will give you a great harvest. कि परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा कटनी देगा। In Matthew 9 and verse 37. और मत्ती 9 का 37 में कहा गया है That the harvest is plentiful. कि फसल तो बहुत ज्यादा है। It's plentiful. You see that word plentiful or abundance there. और यहाँ जो है वो यहाँ कहा गया है कि बहुत है, पक्के खेत तो बहुत है। And so God wants to give you, for all the hard work you've done, God wants to give you in return a great harvest. और इसीलिए आपने जितना भी मेहनत किया है परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बहुत ज्यादा कटनी दे। Now here in this verse it is talking about souls. और इस वचन में आत्मा के बारे में बताया गया है। Jesus came to this world to do harvesting, that is to save the souls of people. यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो कटनी कर सके, जिसका ये अर्थ है कि वो मनुष्य के आत्माओं को बचा सके। We are all a part of that harvest. और हम सभी उसी कटनी की फसल काटने की हम भाग है। But harvest is not only used in the context of souls, it is also used in many other different meanings. और ये जो कटनी है ये बस आत्मा के बारे में ही नहीं बताता है और ये बहुत सारी बातों को ये बताता है। In Psalms 126, the last two verses, और भजन संहिता 126 का जो अंतिम के जो 2 वर्सेस है, पद है, the Bible says, "Those who sow with tears will reap with great joy." और जो आंसू के साथ बोते हैं वो हंसते हुए कटनी करेंगे। So two things we understand there. और हम यहाँ 2 चीजों को समझ सकते हैं। One, your hard work. You've sown with a lot of hard work and sweat. You put a lot of your energy into it, and God says, "I'm going to give you a big harvest." और एक ये है कि आपने वहाँ बहुत ज्यादा मेहनत किया है, आपने वहाँ अपने पसीने को बहाया है और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा कटनी देंगे। Some of you have worked hard on a particular job for a long time. और आप में से बहुत से लोगों ने शायद एक काम में बहुत ज्यादा मेहनत किया है। Some on your children in their education. और बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई में बहुत मेहनत किया है। Some spiritually, but whichever way you worked hard, whichever way you've sown hard, God says you're going to get a good harvest. और बहुत से लोगों ने शायद आत्मिक रूप में बहुत ज्यादा मेहनत किया है। किसी भी तरीके से जिन लोगों ने भी मेहनत के साथ बोया है, परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि अब एक बहुतायत की कटनी को करेंगे। Now you may ask, what is so special about this, pastor? आप ये सोच सकते हो कि पास्टर इसके बारे में इतना विशेष क्या है। You see, when it comes to negative seeds, wrong seeds, you don't have to do any hard work on it. You don't have to water it. It will just grow by itself. और अगर एक हम यहाँ नकारात्मक या बुरी बीज को अगर हम देखेंगे तो वहाँ हमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। You see thorns and weeds just growing in the field. और वहाँ कांटे और जो जंगली जो पेड़ पौधे हैं वो खुद ही वहाँ हम देखते हैं कि वो खुद ही वहाँ जीते हैं, बढ़ते हैं। We don't have to pour water to it. हमें उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। It comes by itself. और वो खुद ब खुद ही आता है। And so, because we live in a fallen world, every negative things we speak, every negative things we do, we don't have to do any work on it. It will come back as a big harvest to trouble us. और हम एक बुरी दुनिया में जीने के कारण जो भी नकारात्मक या बुरी चीजें हम बोलते हैं या करते हैं उसे वापस पाने के लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही हमारे जीवन में आएगी। But to get something good back, there's a lot of hard work that is needed. पर कुछ अच्छा पाने के लिए, वापस पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। A land will not become a garden by itself, but it can become a place of weeds
and it can become like a forest by itself. और एक जमीन जो है वो एक सुंदर बगीचा खुद ब खुद नहीं बन सकता, पर एक जंगल और बुरे पेड़ पौधे उसमें खुद ब खुद ही जग सकते हैं, उग सकते हैं। And so the good news today is this: God will give you a harvest for all the hard work you've done. और इसीलिए आज का जो सुसंदेश है वो ये है कि परमेश्वर आपको आपने जितनी भी मेहनत की है उसका बहुत ज्यादा वो आपको कटनी को देंगे। In your family, in your ministry, in your personal life, God would give you a abundant harvest. और आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके मिनिस्ट्री में परमेश्वर आपको बहुताई की कटनी देंगे। Not just hard work. बस मेहनत ही नहीं। The second thing we see in Psalms 126 is that the Bible says those who sow in tears. और हम यहाँ देखते हैं क्या भजन संहिता 126 में कि जो लोग आंसू के साथ बोते हैं, Emotionally, the turmoil and the depression that you've gone through. और भावनात्मक रूप में आपने जितनी भी चीजों से आप होके गुजरे हैं, The Bible says with great joy you will reap. और वचन कहता है कि बहुत आनंद के साथ आप कटनी को करोगे। And so not only when it comes to your hard work, but also for your emotions, for your tears, God will make sure He'd make you joyful and that there will be great joy within your heart. बस आपकी मेहनत के लिए ही नहीं, पर आप जो भावनात्मक रूप में आप जो जिस चीजों से होके गुजरे हैं, आपने जितनी आंसू बगाए है, परमेश्वर कहता है कि उन सारी चीजों के लिए आप खुशी के साथ कटनी करोगे। That's how your harvest is going to be. और उसी तरह उसी प्रकार का आपका कटनी होगा। I'm not just simply talking about reaping what you sow, but I'm talking about a harvest that is so beautiful that will make your heart very, very joyful. और मैं बस इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ कि आप जो बोते हो उसी की कटनी करोगे, पर मैं इसके बारे में बता रहा हूँ जहाँ आप बहुत ज्यादा कटनी करोगे, जहाँ बहुत ही आनंदित होगे। And so may this month be a month of great joy and great reaping. और इसीलिए ये जो महीना है ये आपके लिए एक बहुत ही आनंद का और अच्छी कटनी का महीना हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।